بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اس ویڈیو میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ کمپلیٹ پروسیس کر کے دکھاؤں گا کہ آپ کس طرح سے پاکستان نیوی میں جابز کے لیے گھر بیٹھے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں۔ اپلائی کرنے کے لیے آپ اپنے موبائل، لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر میں گوگل کروم کو اوپن کریں۔ گوگل کروم اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر سرچ کرنا ہے www.joinpaknavy.gov. یہ سرچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے پاکستان نیوی کی ویب سائٹ اوپن ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ اناؤنسمنٹ میں انسٹرکشنز دی گئی کہ آپ نے کون کون سی چیزیں اپلوڈ جو کرنی ہے، اس میں کیا کیا چیز احتیاط کرنی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر کہتا ہے آپ نے یہاں پر اس کو کراس پر کلک کریں۔ کراس پر کلک کرنے کے بعد نیکسٹ یہاں پر آپ نے اس کو نیچے کی طرف اسکرول کریں۔ اسکرول کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے مختلف کیڈر شو ہو رہے ہیں۔ یہاں پر آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ 2 کیڈر میں پوسٹ اناؤنس کی گئی ہیں۔ یہاں پر سیلرز کی پوسٹ ہیں۔ سیلر کے لیے آپ ویو ایڈ کے بٹن پر کلک کریں۔ کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے یہ ایڈ شو ہوتا ہے۔ یہ کہاں ہے؟ یہاں پر یہ کہتا ہے پاکستان نیوی میں بطور سیلر۔ اس کے بعد یہاں پر آپ اس کو نیچے کی طرف اسکرول کریں۔ اسکرول کرنے کے بعد یہاں پر آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کون کون سی برانچ میں یہ پوسٹ اناؤنس کی گئی ہیں۔ ٹیکنیکل ہے، اس کے لیے جو کوالیفیکیشن مانگی گئی ہے میٹرک سائنس کے ساتھ ہے، 65% آپ نے نمبر حاصل کیا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد عمر کی جو حد ہے 1 جنوری 2027 تک 16 سے 20 سال تک آپ کی عمر ہونی چاہیے۔ قد ہے 5 فٹ 4 انچ آپ کا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ازدواجی حیثیت غیر شادی شدہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد یہاں پر کہتا ہے نیول پولیس کی سیٹ ہے، اس کے لیے قد 5 فٹ 7 انچ مانگا گیا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر کہتا ہے میرین کی ہے، یہاں پر 5 فٹ 6 انچ قد مانگا گیا ہے۔ جو کوالیفیکیشن ہے وہ میٹرک کی ہے۔ اس کے بعد نائب خطیب کی پوسٹ ہے، یہاں پر 5 فٹ 4 انچ قد مانگا گیا ہے۔ اس کے بعد شادی شدہ اور غیر شادی شدہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ شیف ہے، اسٹیورڈ کے لیے یہاں پر پوسٹ اناؤنس کی گئی ہے، 5 فٹ 4 انچ قد مانگا گیا ہے۔ اس کے بعد میوزیشین کی ہے، میٹرک سائنس آرٹس کے ساتھ ہے، 5 فٹ 7 انچ آپ کا قد ہونا چاہیے۔ MDT ڈرائیور کی سیٹ ہے، یہاں پر اس کے لیے آپ کے پاس موٹر کار یا جیپ ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے۔ 5 فٹ 4 انچ قد آپ کا ہے تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی بھی ایج لمٹ 18 سے 24 سال تک ہے۔ سینیٹری ورکر کی جو سیٹ ہے مڈل پاس ہونا چاہیے۔ اس کے بعد 5 فٹ 4 انچ آپ کا قد ہونا چاہیے۔ PT برانچ کے لیے آپ کے پاس 5 فٹ 6 انچ کا قد آپ کے ہے تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد DAE کوالیفائڈ کے لیے یہ پوسٹ اناؤنس کی گئی ہیں، یہ ہیں IT کیٹیگری کے لیے ITT1 کی ہے، ڈائریکٹ انٹری سیلر IT برانچ کے لیے۔ اس کے لیے جو کوالیفیکیشن مانگی گئی ہے میٹرک سائنس کے ساتھ ہے، 65% آپ کی میٹرک ہونی چاہیے۔ آپ نے ڈپلوما DAE CIT یا کمپیوٹر اپلیکیشن، کمپیوٹر سائنس، کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئر میں 50% آپ کے نمبر ہونے چاہیے۔ 18 سے 22 سال تک آپ کی عمر ہونی چاہیے۔ 5 فٹ 4 انچ قد ہونا چاہیے۔ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ دونوں اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد LITT کی سیٹ ہے، اس کی یہ بھی اس میں میٹرک اور DAE مانگا گیا ہے، 5 فٹ 4 انچ قد ہونا چاہیے۔ عمر کی حد 22 سے 27 سال تک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر کہتا ہے ITA4 ہے، اس کے لیے جو کوالیفیکیشن مانگی گئی ہے میٹرک 65% ہونا چاہیے۔ اس کے بعد DAE CIT کمپیوٹر اپلیکیشن ہے، کمپیوٹر سائنس، کمپیوٹر سافٹ ویئر کی سیٹ، یہ اس کے لیے 50% آپ کے نمبر ہونے چاہیے، یا آپ کے پاس کم از کم 10 سال کا تجربہ ہونا چاہیے اگر آپ میٹرک کے ساتھ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں۔ 5 فٹ قد 4 انچ آپ کا قد ہونا چاہیے۔ اس کے لیے جو کوالیفیکیشن اس میں عمر کی حد ہے 27 سال سے لے کر 32 سال تک اگر آپ کے ہیں تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر کہتا ہے ملازمت کے دوران سہولیات جو دی جائیں گی وہ کون کون سی؟ یہ آپ کو الاؤنسز اور تنخواہ کے علاوہ یہ آپ کو سہولیات دی جائیں گی۔ سب سے پہلے کہتا ہے ملازمت کے دوران مفت کھانا، رہائش اور یونیفارم دی جائے گی۔ ہوائی جہاز اور ریل کے سفر میں رعایت ہے۔ والدین، بیوی اور بچوں کا ملٹری نیوی ہسپتالوں میں مفت علاج ہے۔ کورسز اور ڈیپوٹیشن پر بیرون ملک جانے کے مواقع ہیں۔ فیملی رہائش الاؤنسز اور دیگر امارات ہیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد بحری فاؤنڈیشن میں ملازمت کے مواقع ہیں۔ سب میرین SSG نیوی اور ایویشن۔ اس کے بعد یہاں پر کہتا ہے سب میرین SSG نیوی اور ایویشن ایئر کرو برانچز کے لیے اضافی الاؤنس اور راشن دیا جائے گا۔ بچوں کے لیے بہترین تعلیمی سہولیات ہیں۔ دوران ملازمت انشورنس کا تحفظ ہے۔ اس کے لیے جو اپلائی کرنے کے جو لاسٹ ڈیٹ ہے 14 جون سے لے کر 5 جولائی تک آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہاں پر کہتا ہے تمام امیدواروں کے لیے ضروری ہے کہ انٹر ٹیسٹ والے دن سب رجسٹریشن سلپ پر دی گئی ہدایت کے مطابق تیار ہو کر آئیں۔ اس کے لیے ویب سائٹ دی گئی ہیں۔ اور اس کے بعد یہاں پر کہتا ہے کہ اس میں آپ کون کون سے یہ سینٹرز ہیں، ایبٹ آباد ہے، پشاور ہے، حیدرآباد ہے، راولپنڈی، رحیم یار خان، سکر، سوات، سیالکوٹ، شہید بے نظیر آباد، فیصل آباد، کراچی، کھاریاں، کوئٹہ، گلگت، گوادر، لاہور، ملتان اور مظفر آباد اس میں شامل ہیں۔ یہ تھا اس کی ڈیٹیل جاننے کے بعد پھر آپ نے اس میں اپلائی کرنا ہے۔ اپلائی کرنے کے لیے یہاں پر پاک میرینز کی بھی یہاں پر سیٹ اناؤنس کی ہیں، وہ بھی یہاں پر آپ کے سامنے کیٹیگری سیم ہے جو پہلے آپ نے چیک کی۔ اس کے بعد یہاں پر کہتا ہے کہ رجسٹر کرنا ہے۔ رجسٹر کرنے کے لیے رجسٹر ناؤ پر کلک کریں۔ کلک کرنے کے بعد یہاں پر کہتا ہے رجسٹریشن فارم آپ کے سامنے شو ہوتا ہے، آپ نے اس رجسٹریشن فارم کو فل اپ
यहाँ पर आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म शो होता है। आपने इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करना है। सबसे पहले यहाँ पर कहता है एप्लीकेशन, और इसके बाद एडवर्टाइजमेंट, आपने यहाँ पर ऐड सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है ब्रांच, आपने ब्रांच को सिलेक्ट करना है। जो भी आपकी ब्रांच है वो यहाँ पर आपके सामने शो हो रही है। जिस भी ब्रांच में आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए, वो यहाँ उस पर यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है PNR एंड SC, यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन सेंटर है या आप जहाँ पर भी ये इंटरव्यू और इसके बाद टेस्ट देना चाहते हैं वो यहाँ पर अपने सेंटर को सिलेक्ट करना है। ये आपके सामने सारे सेंटर शो हो रहे हैं। जो भी आपके करीब तरीन सेंटर है वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने अपनी मर्ज़ी की टेस्ट डेट भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके सामने टेस्ट डेट शो हो रही हैं, जो भी आपके लिए ईजी रहती है, या आप ये समझते हैं कि इस दिन मैं फ्री होऊंगा तो उस दिन जाकर आपने टेस्ट दे सकते हैं। अपनी मर्ज़ी के यहाँ पर टेस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कहता है डायरेक्ट एंट्री सेलर IT ब्रांच ITA और फॉर 10 ईयर्स एक्सपीरियंस इसके लिए रिक्वायर्ड है। यहाँ पर आप इसकी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद एज लिमिट भी चेक कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं। ये तमाम चेक करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कहता है कि आप शहीद नेवल वार्ड, आप किसी भी ऐसे सरकारी मुलाजिम के बेटा या बेटी हैं जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान नेवी में वर्क कर रहे थे। अगर कर रहे तो फिर आपने यहाँ पर इसके सिलेक्ट करने के नेवल वार्ड था या PN शहीद थे, जो भी उनकी कैटेगरी थी वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद एंड रैंक ऑफ पेरेंट, आपने अपने पेरेंट का यहाँ पर नाम लिखना है। और इसके बाद यहाँ पर जॉब की कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, सिविलियन थी या यूनिफॉर्म में थी वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है। इसके बाद सर्विस नंबर यहाँ पर लिखना है, और सर्विंग यहाँ पर रिटायर्ड जो भी कैटेगरी है, अगर सर्व कर रहे हैं तो अभी तक जॉब कर रहे थे या रिटायर्ड थे, जो भी कैटेगरी थी वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर कहता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर कहता है अपलोड पिक्चर, आपने पिक्चर को अपलोड करना है। पिक्चर अपलोड करने के लिए यहाँ पर कहता है कि आपकी जो पिक्चर का साइज़ है 20 KB होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर कहता है कैंडिडेट नेम, आपने अपना मुकम्मल नाम लिखना है। ये लिखने के बाद कैंडिडेट CNSE वाले खाने में अपने शनाख्ती कार्ड नंबर को लिखें, या आपके शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं है तो फिर आप बेफार्म नंबर लिखें। इसके बाद फादर नेम वाले खाने में अपने वालिद का नाम लिखें। इसके बाद फादर CNSE यहाँ पर लिखें। इसके बाद यहाँ पर कहता है जेंडर, आपने जेंडर को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है मेल हाइट, आपने अपनी हाइट को सिलेक्ट करना है। जो भी आपकी हाइट है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। इसके बाद मार्शल स्टेटस यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कहता है रिलीजन, आपने अपना रिलीजन सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद प्रोविंस, आपने अपना सूबा सिलेक्ट करना है। यहाँ पर ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट आपने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर देना है। ये आपके सामने डिस्ट्रिक्ट शो हो रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है डेट ऑफ बर्थ, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो या आपने इस तरह से ये सिलेक्ट कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर कहता है ईमेल वाले खाने में यहाँ पर आपके कहता है मैंने यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट किए वो इसमें। इसके बाद यहाँ पर कहता है ईमेल वाला खाने में यहाँ पर जीमेल लिखने है। जीमेल लिखने के बाद पोस्टल एड्रेस, यहाँ पर आपने अपना मुकम्मल पोस्टल एड्रेस लिखना है। इसके बाद परमानेंट एड्रेस वाले खाने में आपने अपना मुकम्मल परमानेंट एड्रेस लिखना है। इसके बाद मोबाइल नंबर वाले खाने में अपना मोबाइल नंबर लिखें। इसके बाद फादर मोबाइल नंबर वाले खाने में अपने वालिद का मोबाइल नंबर लिखना है। ये यहाँ पर लिखने के बाद यहाँ पर ये कहता है कि आप प्लीज़ डू नॉट प्रोवाइड पोर्टेड मोबाइल नंबर, आपने अपना जो मोबाइल नंबर है पोर्टेड नहीं देना। इसका मतलब ये है कि आपने जो कन्वर्टेड मोबाइल नंबर है वो इंटर नहीं करना। अगर आपके जायज़ की सिम है तो वो जायज़ नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर कहता है एकेडमिक और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये लाजमी है। इसके बाद यहाँ पर कहता है सबसे पहले मैट्रिक को सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद बोर्ड का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपने जितना नंबर हासिल किए हैं वो यहाँ पर आपने लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है ये ऑब्टेन मार्क्स की आपने परसेंटेज लिखनी है। परसेंटेज लिखने के लिए जितने भी परसेंटेज है वो यहाँ पर आपने इस तरह से लिख देनी है। इसके बाद सिलेक्ट डिग्री, आपने डिग्री की यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करना है। आपने डिप्लोमा किया या BTech किए, ये BTech इंटर करने से पहले आपने डिप्लोमा का इंटर करना है यहाँ पर। इसके बाद बोर्ड का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जो भी बोर्ड है वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने परसेंटेज यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है अप्लाई करने के लिए से पहले आपने जो अपनी एप्लीकेशन फॉर्म है उसको दोबारा चेक कर लें। चेक करने के बाद ताकि कहीं पर कोई भी मिस्टेक है आप उसको करेक्ट कर सकें। ये एप्लीकेशन फॉर्म चेक करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस है कि आपने यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दे रहा है अप्लाई, तो आप अप्लाई के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है अफर्मेशन सर्टिफिकेट बाय कैंडिडेट। इसके बाद आई एग्री पर क्लिक करें और सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होता है और यहाँ पर आपके सामने आपकी रोल नंबर स्लिप होती है, शो होती है। आप प्रिंट पर क्लिक करके अपनी जो रोल नंबर स्लिप है उसको आप सेव कर लें, या आपके पास प्रिंटर मौजूद है तो आप उसको प्रिंट निकाल सकते हैं। ये निकालने के बाद इसके सामने यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस लिखी गई हैं। सबसे पहले यहाँ पर कहते हैं इम्तिहान वाले दिन इस रजिस्ट्रेशन स्लिप की रंगीन कॉपी के साथ अपना असल शनाख्ती कार्ड या स्मार्ट का ID कार्ड, वेजनाइल कार्ड, तालीमी दस्तावेज़ात
डोमिसाइल और 2 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीर हमरा लाएं। शनाख्ती कार्ड या स्मार्ट कार्ड से रजिस्ट्रेशन स्लिप पर मुख्तलिफ शनाख्ती कार्ड रखने वाले और असल दस्तावेज़ात दुरुस्त साबित न होने पर उम्मीदवार को नाअहल करार दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कहते हैं पाकिस्तान नेवी के मुलाजमीन के बच्चों या पाकिस्तान नेवी के शोहदा के बच्चों को दस्तावेज़ाती सबूत लाना लाजमी होगा। मोबाइल फ़ोन या डिजिटल डायरी, कैलकुलेटर और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात बशमूल स्मार्ट वॉच की इजाज़त नहीं है। इसके बाद यहाँ पर कहता है अगर आप आर्म फोर्सेस पाकिस्तान, इसके बाद पुलिस है, किसी और पाकिस्तानी फौज या किसी गवर्नमेंट इदारे में काम कर रहे हैं तो टेस्ट वाले दिन एनओसी साथ लाजमी लेकर जाएं। अगर आप पहले की भी आर्म फोर्सेस में काम कर चुके तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की कापी हमरा लानी है। इसके बाद यहाँ पर कहता है अगर आप कभी किसी भी पुलिस से केस में पकड़े गए, जेल में रहे या आपका अदालत में केस चला और मुजरिम करार पाए तो टेस्ट वाले दिन मुतल्लिका केस या फैसले की कापी आपने साथ लेकर जानी है। इसके बाद यहाँ पर कहते हैं कि पाकिस्तान नेवी में भर्ती या सिलेक्शन खासतौर मेरिट पर की जाती है। अगर किसी उम्मीदवार को किसी शख्स ने रिश्वत के लिए उकसाया हो तो फौरी तौर पर पाकिस्तान नेवी भर्ती मराकज़ के ईमेल और मुराबता नंबर पर इस मामले की इतला दे सकता है। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से पाकिस्तान नेवी में जॉब्स के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी आपको किसी बात की समझ नहीं, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक